This comprehensive PGDAST course was originally delivered through live sessions by the official instructors. We are uploading these sessions here to support students, and all credit goes to the respective teachers and instructors. Good evening, everyone. Welcome back to the next session of the class MST04, and we have to continue the unit number 9. And yesterday I have completed the type first and type second error of the testing of hypothesis. Type first error is that we reject H0 when H0 is true, whereas the type second error is the do not reject H0 when H1 is true. Okay, so now we come on the we will take this example after the completing this one. Now first we take the other concept. Now the second next concept is the label of significance. Label of significance is nothing but is the type first error, and it is generally taken as we have explained that type first error is fixed in the beginning of testing procedure, and so it is called the label of significance. Label of significance means that if we repeat a test 100 times, then if level of significance is 5, it means that the rejection or acceptance, that is our result, our conclusion, may be true 95 times and 5 times may be false, या हमारा जो डिसीजन होगा वो 5 times हमारा wrong हो सकता है. Okay, so the level of significance is nothing but is a type first error. Okay, now we come on the one tail and two tail test. As I have earlier said that the one tail and two tail test depend upon the alternative hypothesis. If alternative hypothesis is two tail, it means that the test based on that hypothesis is two tail test, and if the alternative hypothesis is one tail, then the test based is the one tail test. So if the hypothesis is such type not equal to, it means that theta is less than theta 0 or greater than theta 0, it means that it is a two-tailed hypothesis, and the test based on this hypothesis is the two-tailed test, and the critical reason under both tail. It depends if the alternate hypothesis is two-tailed, or we can say that the test is two-tailed, then the critical reason is distributed into both sides, left side and right side, as we have seen the area in MST in the first block of this course. And if this if the alternative hypothesis of this type, it means theta is greater than theta 0, and theta is greater than theta 0, it means that it lies on the right side. So the test is called the right tail test, and the critical reason under this test is right tail only. And similarly, if alternative hypothesis such type, then the test is called the left tail test, and the critical lie under the left tail. So yeah, so now we consider the example number 3. A company has replaced its original technology of producing electric bulbs by CFL technology. The company manager wants to compare the average life of bulb manufactured by the original technology and new technology. Right? Appropriate null and alternative hypothesis. Also say that one tail and two tail test. तो यहाँ पे इसने ये इंडिकेट नहीं किया कि वो क्या टेस्ट करना चाह रहा है. वो ये टेस्ट चेक करना चाह रहा है कि दोनों टेक्नोलॉजी से जो एवरेज लाइफ बनेगी वो सेम होगी, या जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो बेटर है ओरिजिनल टेक्नोलॉजी से. तो ठीक है, हम दोनों तरह से इसे डील करेंगे. सपोज द एवरेज लाइफ ऑफ द ओरिजिनल एंड CFL टेक्नोलॉजी इज डिनोटेड बाय μ1 एंड μ2. आपको ये हमेशा बताना होगा कि आप μ1 किसको ऐड कर रहे हैं और μ2 किसको ऐड कर रहे हैं. नाउ अब अगर मैनेजर चाह रहा है कि भाई ये दोनों डिफर कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, तो वी कैन टेक एज द μ1 is equal to μ2, that average life of both the bulbs are same and average life of two types of bulbs are different. So here the alternative hypothesis is two-tailed, so the test based on this hypothesis is two-tailed test. पर अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो क्या हम न्यू टेक्नोलॉजी
यूज कर सकते हैं कि उनका जो एवरेज लाइफ वो डिफर करेगी? नहीं, हम तब यूज करेंगे कि जो हमारी न्यू टेक्नोलॉजी हो बेटर एवरेज लाइफ दे. सो वी कैन आल्सो make the hypothesis in such a way that the average life of CFL or new technology is better than the original one या old one. So and the complement of this is that one, and since it has the equality sign, so we can taken as the null hypothesis and this one as the alternative hypothesis. Okay, and since it is a कौन सा टेस्ट है, लेफ्ट है कि राइट? यस, कोई बताएगा लेफ्ट के राइट? left tail. So it is left tail. So test on this base hypothesis is the left tail test. Okay. Okay. Now certain multiple choice question. If we have null and alternative hypothesis as this one, the corresponding test will be, so alternative two tail test हो जाएगा. The test whether one tail or two tail depend on, किस पे डिपेंड करता है? Yes, null पे कि alternative पे? Neither, both. Alternative hypothesis. Okay. Yes. Now we come on the general procedure testing hypothesis. देखिए general procedure जो भी है testing hypothesis का, वो आगे जितनी भी जी yes बताइए. In the previous example, can you explain why the null hypothesis and alternative hypothesis have been changed? In which one? This one? Yes, this one. No, sir. The previous example. Example number? So before the exercise. Before. Example number 3. This one ना? Example number. Yes, sir. क्या पूछ रहे हैं आप कि हाउ? यहाँ पे हमने क्या चेंज कर दिया है? The bulb example. Yes, yes. One with the yes, bulb example is there. The concern is that the company manager want to compare the average life of bulbs manufactured by the original technique and the new technology. तो इसने कहा कंपैरिजन करना है उसको. अब कंपैरिजन वो कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए हमने ये भी बना सकते हैं हाइपोथेसिस, ये भी बना सकते हैं, और थर्ड वाली बन सकती है कि अगर वो समझे कि वो ये चेक करना चाहे कि जो एवरेज वन इज greater than mu2. यस, ये भी बना सकता है वो. तो हमारी क्या होगा, इसका अल्टरनेटिव होगा एज सॉरी then the alternative of this one is, since it takes the equality sign, so we consider as the null hypothesis and taken as the alternative. तो यहाँ पे इसने कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया था कि वो कैसे कंपैरिजन करना चाह रहा है. वो ये देखना चाह रहा है कि मेरा न्यू टेक्नोलॉजी इज बेटर देन द ओल्ड वन, या ओल्ड वन इज द बेटर देन द न्यू टेक्नोलॉजी, और दे आर टोटली डिफरेंट. तो हमने उसी हिसाब से इसको बना लिया है. तो ये भी हो सकता है, ये भी थर्ड केस भी हो सकता है. ओके, पर जनरली ये केस ज्यादा होगा क्योंकि हम तभी इंटरेस्टेड होंगे किसी उसके लिए जिसके लिए अगर न्यू टेक्नोलॉजी की एवरेज लाइफ ज्यादा होगी ओल्ड वन से. तो इट इज मोस्ट सुटेबल हाइपोथेसिस फॉर दैट वन. ओके, चलिए आगे लेते हैं. यस, हो गया क्लियर? कुछ और पूछ? इट इज ओके? no, sir. Yeah. Okay. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now we come on the general procedure of testing the hypothesis. देखिए मैं ये बोल रहा था कि जो ये प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर विल फॉलो इन that block. It means block number 3, and it will also follow in the block number 3. फॉलो होगा जो यहाँ पे ले रहे हैं वही हम आगे वाले में लेंगे, यानी रेस्ट जितना भी टॉपिक बचता है वो सब सेम रहेगा प्रोसीजर. ठीक है, बस क्या चेंज होगा? द टेस्ट विल बी चेंज. कहीं पे हम जेड टेस्ट लगाएंगे, कहीं पे टी लगाएंगे, कहीं पे एफ लगाएंगे, कहीं पे काई स्क्वायर लगेगा, कहीं पे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगेंगे.
साइन टेस्ट, विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, तो देयर आर सो मेनी टेस्ट। तो प्रोसीजर सबका एक ही, ये इसके मैं कहता कि अगर आपने इसको समझ लिया तो प्रोसीजर सबका एक जैसा है। तो अगर आपने समझ लिया और आपको ये पता चल जाए कि इस सिचुएशन में ये टेस्ट लगना है, तो फिर कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल इजी है, क्योंकि सबका प्रोसीजर एक जैसा है। ठीक है, तो क्या प्रोसीजर है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का, चलिए इसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेट अप नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सबसे पहला हमारा काम है, कोई भी क्वेश्चन हमें गिवन होगा तो वी ट्राई टू सेट अप नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन हमें गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम नल हाइपोथेसिस बनाएंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे। ठीक है, आपने बनाना सीख ही लिया है किस तरह से आप अल्टरनेटिव नल बनाएंगे, किस तरह से अल्टरनेटिव बनाएंगे। चलिए, तो फर्स्ट स्टेप तो आपका हो गया है। सेकंड क्या है, तो क्या हो सकती है हाइपोथेसिस, या तो ये होगी इक्वल होगा, या लेस देन तो ये ग्रेटर होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन होगा। अगर हम केवल वी आर डीलिंग विद द वन पॉपुलेशन, अगर टू पॉपुलेशन होंगी तो ये हाइपोथेसिस होगी कि दोनों पॉपुलेशन का मीन या जो भी पैरामीटर है वो इक्वल होगा। यहाँ पे मीन भी हो सकता है, प्रोपोर्शन भी हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है, वेरिएंस हो सकता है। तो दोनों ये तो इक्वल होंगे, दोनों इक्वल नहीं होंगे। वन छोटा होगा, इक्वल होगा सेकंड से, दूसरा ग्रेटर होगा, तो ये पॉसिबिलिटी है। सेकंड क्या है कि after setting the null hypothesis and alternative hypothesis, second step is to decide the level of significance, कि हमें लेवल क्या रखना है, क्योंकि आगे जो हम प्रोसीजर यूज करेंगे उसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी हमारा डिपेंड करेगा। तो अगर हमें भी हैव टू फिट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जनरली आपको नहीं सोचना है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर बाय द वे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो वी टेक एज 5%, तो हम क्या लेंगे उसमें 5% कर लेंगे। चलिए, तो थर्ड स्टेप क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमें ये डिसाइड करना है, ये सिचुएशन, कि हम इसमें कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे। क्या हम इसमें जेड टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम इसमें काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, या हमें पैरामेट्रिक टेस्ट की बात, टेस्ट को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है, पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट में हमारे लिए क्या है एजम्पशन कि हमारी पॉपुलेशन की फॉर्म नॉन होनी चाहिए, यानी वो नॉर्मल होना चाहिए। अगर नॉर्मल नहीं है तो फिर लार्ज होना चाहिए। पर अगर बाय द वे सैंपल साइज भी छोटा है और पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं है, तो फिर हम वी कैन नॉट यूज द पैरामेट्रिक टेस्ट, एंड दैट सिचुएशन वी हैव टू यूज द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो सबसे पहले आपने यही देखना है, अगर सैंपल साइज लार्ज है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जेड टेस्ट लगा सकते हैं। पर अगर सैंपल साइज आपका स्मॉल है और नॉर्मल पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं है, तो फिर आपने देखना पड़ेगा कि भाई अब कौन सा टेस्ट लगेगा। अगर नॉर्मलिटी अजम्पशन गिवन है तब तो आप सैंपल साइज स्मॉल है, नॉर्मलिटी अजम्पशन गिवन है, तब तो आप कोई भी पैरामेट्रिक टेस्ट लगा सकते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट में आपका जेड टेस्ट आता है, टी टेस्ट आता है, एफ आता है, काई स्क्वायर आता है फॉर सिंगल वेरिएंस। फिर हमें देखना पड़ेगा अगर बाय द वे आपका पॉपुलेशन साइज भी छोटा है, सॉरी सैंपल साइज छोटा है और पॉपुलेशन भी गिवन नहीं है, नॉर्मल अजम्पशन नहीं गिवन है, तब आपने क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गो फॉर द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, बिकॉज द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर नॉट बेस्ड ऑन द फॉर्म ऑफ द पॉपुलेशन की फॉर्म पर डिपेंड ही नहीं करते। वो कहते हैं कोई सी पॉपुलेशन हो हम टैकल कर लेंगे इजीली। ठीक है, बट पावर ऑफ दीज टेस्ट इज लेस देन पावर ऑफ द पैरामेट्रिक टेस्ट, और उसकी पावर कम होती है। पावर कम होने की वजह से क्या होगा कि जो वो डिसीजन देगा उसमें जो है एरर ज्यादा बनेगी, और पैरामेट्रिक टेस्ट जो है उससे पावरफुल होते हैं तो इसमें एरर कम बनेगी। तो हम कोशिश पहले यही करते हैं कि हम पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएं, पर अगर सिचुएशन इस तरह की है कि हम पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं लगा पा रहे, उनके एजम्पशन फुलफिल नहीं हो पा रहे पैरामेट्रिक टेस्ट के, देन वी गो फॉर द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। चलिए, अब ये डिसाइड होगा कि भाई आप इसमें जेड टेस्ट लगाएंगे, टी टेस्ट लगाएंगे, तो फिर आता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि जो भी हम टेस्ट लगाएंगे उसकी एक कैलकुलेशन करेंगे, उसे बोलते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के बेस पे हम उसको चेक करेंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जैसे आपने जो मैंने एग्जांपल दिया था कि एक स्टूडेंट से 100 जो जिन्हें 10 एग्जाम देने हैं और हमें देखना है कि वो डिस्टिंक्शन होल्डर है कि नहीं है, तो वहां हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक ली थी कि सम करके देख लें कि भाई अगर स्टूडेंट की जो मार्क्स है उनका सम 750 होता है तो हम कह देंगे 750 से ज्यादा होता है तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज हम रिजेक्ट कर लेंगे। तो जो वो हमने जो वो टोटल करा कि समेशन xi टोटल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इज नथिंग बट इज अ टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वो है जिससे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जो हाइपोथेसिस वो एक्सेप्ट होगी कि रिजेक्ट होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हर उसके लिए अलग टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, टी के लिए अलग है, जेड के लिए अलग है, सिंगल मीन के लिए अलग है, डिफरेंस ऑफ टू मीन के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग है। पर बेसिक फॉर्मूला क्या है वो ये है। बेसिक फॉर्मूला क्या है, स्टैटिस्टिक वैल्यू ऑफ द पैरामीटर अंडर H0
एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। या मैं कुल बात कहूं तो सब कुछ मैंने बताया था कि डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, वो कर रहा है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। अगर मैं कहूं कि मेरा जो एक्स बार है उसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है ना, कितना होता है मीन, म्यू वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो ये कह रहा है अगर आपको मीन की टेस्टिंग करनी है तो आपका फार्मूला क्या होगा, स्टैटिस्टिक मेरी क्या है, एक्स बार है, माइनस फिर कह रहा है वैल्यू ऑफ द पैरामीटर अंडर एच जीरो। अंडर एच जीरो में पैरामीटर की वैल्यू देख लेते हैं। सपोज कर रहे हैं कि हमारी जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है वो ये बनाई है, ये हमने हाइपोथेसिस बनाई है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा जीरो है, तो हम थीटा जीरो मान सकते हैं। तो ये हो गई मेरी पैरामीटर की वैल्यू थीटा जीरो, ठीक है। अंडर रूट कह रहा है कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक, तो स्टैंडर्ड एरर क्या होगी इसका, इसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर उसका रूट क्या होगा, सिग्मा रूट एन। तो ये फार्मूला बन गया मेरे टेस्ट स्टैटिस्टिक का। अगर मैं कहूं कि मेरे पास डिफरेंस ऑफ मीन को चेक करना था, तो डिफरेंस ऑफ मीन का आपको याद होगा जो डिस्ट्रीब्यूशन बना था वो नॉर्मल था, जिसका म्यून था म्यू वन माइनस म्यू टू, और वेरिएंस था सिग्मा वन स्क्वायर अपॉन एन वन अगर सिग्मा वन नोन था, एंड सिग्मा टू स्क्वायर बाई एन टू, ये था, ठीक है। तो अब इसको बनाना है बाय द वे मुझे, तो कैसे बनेगा, स्टैटिस्टिक क्या है मेरी, डिफरेंस ऑफ मीन्स है, तो मैं ले लूंगा कि स्टैटिस्टिक हो गई मेरी एक्स बार माइनस वाई बार। फिर क्या कह रहा है सेकंड, फिर ये कह रहा है कि आप, चलिए तो पहले एक्स बार माइनस वाई बार ले लिया, फिर क्या करें, माइनस करें, माइनस क्या करें, वैल्यू ऑफ द पैरामीटर अंडर एच जीरो, के पैरामीटर की वैल्यू। तो यहाँ पे पैरामीटर की वैल्यू क्या है, अगर मैं कोई से भी दो पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, म्यू वन लेस देन इक्वल टू म्यू टू, तो इक्वल टू जनरली हम इसमें इक्वल टू साइन कंसीडर करते हैं, तो म्यू वन इक्वल टू म्यू टू, तो यानी म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, और किसके बराबर होंगे, जीरो के बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर है तो इससे कट जाएगा, म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू, तो ये क्या होगा, दोनों कट गए, जीरो आ गया डिफरेंस इनका। तो ऊपर तो ये बन गया, और नीचे क्या बनेगा, सिग्मा वन स्क्वायर अपॉन एन वन प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन टू, ये बना लिया हमने इसका स्क्वायर रूट। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, क्योंकि सिग्मा वन सिग्मा टू तो नॉन है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जेड होगा, तो इसको जेड लिख देंगे। अगर बाय द वे सिग्मा वन सिग्मा टू अननोन होते तो हम इसको किससे एस्टिमेट करते, एस से एस्टिमेट करते, और सैंपल साइज स्मॉल होता तो हम इसको कहते टी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया था, तो ये हम फिर टी। तो इस तरह से हम हर टेस्ट का फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है, पर दे आर अवेलेबल इन योर फॉर्मूला बुकलेट, तो यू कैन यूज एज सच। चलिए, तो चलिए ये भी हो गया। फिर क्या कह रहा है कि थर्ड स्टेप कि आपने ये भी जान लिया कि इसमें हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है। फिर क्या रहा है, कैलकुलेटर। फिर आप मान लीजिए हमारी टेस्ट स्टेटिस्टिक्स बनी थी एक्स बार माइनस थीटा जीरो अपॉन, चलिए मानते हैं सिग्मा अननोन है, तो इसको एस से कर लिया, तो आप इसको कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए मीन, सैंपल तो आपके पास है, तो सैंपल मीन निकाल लेंगे, एस निकाल लेंगे फॉर्मूले से, वन अपॉन एन माइनस वन करके, ये भी निकल जाएगा, एन भी आपके पास है, और थीटा जीरो की वैल्यू भी आपके पास है। जैसे अगर बाइक की बात करें, जो हमने एग्जांपल चल रहा था हमारा, कि जो बाइक का माइलेज है 60 किलोमीटर पर, तो थीटा जीरो कितना होगा, 60 हो जाएगा। तो सब वैल्यू हमारे पास नोन हो गई, तो इसलिए क्या हुआ, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसको स्टैटिस्टिक क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पैरामीटर तो है पर पैरामीटर की वैल्यू नोन है आपको, इसलिए इसको स्टैटिस्टिक कहा गया। मैंने कहा था कि इफ द a function of sample observation if it contains unknown parameter then it is not a statistic, but अगर ये नॉन वैल्यू है तो ये स्टैटिस्टिक है। तो थीटा की वैल्यू तो हमें पता है 60 किलोमीटर है, तो नॉन है, तो इसलिए इसको हम स्टैटिस्टिक बोल सकते हैं। चलिए, तो ये भी हो गया, आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। उसके बाद क्या करना है, अब हमें चाहिए वो कट ऑफ, जो कि हमने बताया था कि भाई अगर हमें कि जैसे हमने वो एग्जांपल किया था कि 750 वाला बनाया था हमने, कि अगर वैल्यू यहाँ पड़ेगी तो हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे लाई कर तो रिजेक्ट कर देंगे, यानी कुल सैंपल स्पेस को वी हैव टू कट। हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो उसको अलग कर सके, उसको डिवाइड कर सके, एक्सेप्टेंस रीजन और नॉन एक्सेप्टेंस रीजन, या क्रिटिकल रीजन और नॉन रिजेक्शन रीजन, तो वो वैल्यू हमें चाहिए। तो यहाँ पे तो 750 थी, पर अदर केस में इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं, ये इन्होंने क्या करा, टेबुलेटेड वैल्यू, सॉरी दिस वैल्यू इज गिवन इन द टेबुलर फॉर्म, जो आपने टेबल पढ़ा था काई स्क्वायर की, एफ की, तो वहां से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, चलिए, तो इन द क्रिटिकल वैल्यू इन द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन
टेस्ट स्टैटिस्टिक एंड कंस्ट्रक्ट क्रिटिकल रीजन ऑफ साइज अल्फा। ये कह रहा है कि अल्फा के अकॉर्डिंग हम टेबुलेटेड वैल्यू देख लेंगे। जैसे हमने टी की वैल्यू देखी थी, तो टी की वैल्यू मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू 0.5 पे, वो 1 सॉरी चलिए उसकी देख लेते हैं नॉर्मल की, वो 96 है 5% पे, अल्फा इक्वल टू 5%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जो रीजन डिवाइड होगा वो 1.96 पे डिवाइड होगा, यानी क्योंकि हमारा जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल को फॉलो कर रहा था तो हमने नॉर्मल कर्व बनाया पहले, और क्रिटिकल रीजन कैसे डिवाइड कर दिया, 1.96 पे यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो 1.96 से जो ग्रेटर होगा वो हमारा क्रिटिकल रीजन आ जाएगा, अगर वन हाइपोथेसिस वन टेल है। अगर हाइपोथेसिस टू टेल होगी तो फिर इधर भी जाएगा। अब हम देखेंगे ये हमारा क्रिटिकल रीजन हो गया, ये हमारा नॉन रिजेक्शन रीजन हो गया। अब हम टेस्ट की वैल्यू देखेंगे, जो हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, मान लेते हैं वो आ गई हमारी 2.3 आ गई। ओके, तो 2.3, तो 2.3 कहाँ लाई करेगा, इस रीजन में लाई करेगा, इसमें बताइए कौन से रीजन में लाई करेगा 2.3, शेडेड एरिया में, यहाँ पे लाई करेगा कहीं पे। तो इसका मतलब कहां पड़ रहा है, क्रिटिकल रीजन में लाई कर रहा है, और क्रिटिकल रीजन में हम हाइपोथेसिस क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। अगर ये 1.3 आ जाता तो 1.3 कहां पे लाई कर रहा था, नॉन रिजेक्शन में रीजन में, तो हम रिजेक्ट नहीं करते। तो बड़ा सिंपल फार्मूला है। तो हमें आप पता, यानी कुल मिला के आपको पहले क्रिटिकल, यानी एक ग्राफ बना के आपको देख लेना चाहिए कि आपका क्रिटिकल वैल्यू, आपका क्रिटिकल रीजन कौन सा है। तो क्रिटिकल रीजन मैंने बताया था कि अल्टरनेटिव पे डिपेंड करता है। अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टू टेल है तो क्रिटिकल रीजन दोनों साइड होगा। अगर आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस राइट टेल है तो क्रिटिकल रीजन राइट टेल होगा। अगर आपकी अल्टरनेटिव लेफ्ट टेल है तो आपका क्रिटिकल रीजन लेफ्ट टेल होगा। उसके अकॉर्डिंग हम इसको देख सकते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, रिजेक्ट होगी। आपका अगर क्रिटिकल रीजन गलत बन गया तो आपका डिसीजन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या करना है, फिर आगे क्या कर रहा है भाई। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आफ्टर हम क्या करेंगे, इन टेस्टिंग हाइपोथेसिस अल्टीमेटली वी हैव टू रीच एट ए कंक्लूजन। इफ कैलकुलेटेड वैल्यू टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लाई इन द रिजेक्शन रीजन at alpha level significance, then we reject the null hypothesis. It means that the sample data provide us, अब हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो, हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने मतलब क्या है कि आपको सैंपल जो है वो आपको प्रॉपर क्या कर रहा था, वो आपको प्रॉपर एविडेंस दे रहा था। तो हम यही लिखेंगे यहाँ पे, द सैंपल डेटा प्रोवाइड्स अस sufficient evidence against the null hypothesis. It means that there is significant difference between the hypothetical value and observed value of the parameter. आगे हम इसको बताऊंगा कैसे करते हैं, बस खाली आप यहाँ पे यही सीख लीजिए कि इसका मतलब हाइपोथेसिस यहाँ पे रिजेक्ट होगी। अगर बाय द वे वो हमारा नॉन रिजेक्शन रीजन पर था तो हम लिखते वी डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। जनरली हम ये नहीं लिखते कि हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वी डू नॉट रिजेक्ट मतलब तो यही हुआ कि रिजेक्ट नहीं कर रहे तो एक्सेप्ट कर रहे हो, पर लैंग्वेज में हम वी डू नॉट रिजेक्ट लिखते हैं। इट मींस दैट सैंपल डेटा फेल्स टू प्रोवाइड अस सफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस। इसका मतलब जो सैंपल हमारे पास वो हमें प्रॉपर एविडेंस नहीं दे पा रहा है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें, क्योंकि नल हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं फॉर द रिजेक्शन। हम कोशिश करते हैं कि नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो जाए। ओके, तो दिस इज द प्रोसीजर। एंड नाउअडेज अगर आप देखते होंगे सॉफ्टवेयर तो वहां पे जनरली क्या है, वो पी वैल्यू पे कंसेप्ट, आजकल जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो पी वैल्यू देते हैं। तो पी वैल्यू ये तो हुआ क्रिटिकल रीजन के बिहाफ पे कि हमने डेटा को रिजेक्शन रीजन और नॉन रिजेक्शन रीजन में डिवाइड कर लिया, एंड देन वी टेक द डिसीजन अबाउट द हाइपोथेसिस कि हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। तो नेक्स्ट जो मेथड है वो है पी वैल्यू। पी वैल्यू आजकल बहुत ज्यादा यूज होती है और हम लोग डिसीजन भी पी वैल्यू के ऊपर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो अब अगर हम इसको, वैसे तो मैनुअल में भी पी वैल्यू निकाल सकते हैं पर वो थोड़ा सा टिपिकल होता है निकालना, खासकर जो पी वैल्यू है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकल जाती है इजीली वे में, पर अदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है टी है, एफ है, काई स्क्वायर, तो वहाँ प्रॉपर पी वैल्यू नहीं निकल पाती। तो हम थ्योरी में तो या जो आप एग्जाम में तो आप इसको क्रिटिकल रीजन के बेस पे ही करोगे जो मैं प्रोसीजर है, पर आप जब लैब है तो वहाँ पे आप पी वैल्यू और क्रिटिकल रीजन या आप अपनी को रिसर्च कर रहे हो तो वहाँ पे आप रिजल्ट पी वैल्यू के बेस पे दे सकते हो, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर वी कैन इजीली फाइंड आउट द पी वैल्यू फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। Suppose it was found that the average weight of a potato was 50 gram and standard deviation was 51.5 gram। ये नियरली हटा देते हैं, ठीक है। हमें जो पोटैटो का वेट था 50 ग्राम था और स्टैंडर्ड डेविएशन का 5.1 था। We want to test that due to the advancement in the agricultural technology, the average weight of potatoes has been increased. To test this, a random sample of 50 potatoes is taken and calculate the sample mean as इतना। Describe the procedure of carry out this test.
तो कैसे इसको टेस्ट को हम करेंगे, तो वही है कि फर्स्ट लेंगे हम स्टेप लेंगे कि फर्स्ट स्टेप क्या है, वी फॉर्मुलेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो हम क्या देखना चाह रहे हैं कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि जो हमारा टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई है तो एवरेज वेट पोटैटो का बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। तो मान लेते हैं कि जो पुराना वेट था वो था, पुराना वेट तो ऑलरेडी गिवन है 50 था, तो उससे क्या है वो इंक्रीज हो गया है, तो यानी जो मेरा म्यू है अब जो नया है वो मेरा इससे ग्रेटर है, मुझे ये टेस्ट करना है। ओके, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, म्यू इज लेस देन 50। तो क्योंकि इक्वलिटी साइन इसमें है तो हम इसको नल ले सकते हैं और इसको अल्टरनेटिव ले सकते हैं। तो नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बन गई। फिर हम लेंगे इसमें अल्फा, अल्फा क्योंकि यहाँ पे गिवन नहीं तो वी कैन कंसीडर एज अल्फा 5%। नाउ अदर सिचुएशन देखते हैं कि अब यहाँ पे हमें कौन सा टेस्ट इसमें अप्लाई करना है। पहले हम देखेंगे कि भाई टेस्ट क्या कर रहे हैं, हमें मीन का टेस्ट करना है। तो मीन के टेस्ट में हमारे पास दो टेस्ट अवेलेबल हैं, एक तो जेड है और एक टी है। अगर सिग्मा नोन है तो हम लगाते हैं जेड टेस्ट, सिग्मा अगर नोन है, और अगर सिग्मा नोन है तो हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं, टी टेस्ट लगाते हैं। ये आपको पता ही है क्योंकि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इसका ऐसा होता है, सिग्मा नोन तो जेड डिस्ट्रीब्यूशन बनता है और सिग्मा नोन होता है तो टी बन जाता है। तो उसी तरह से हम इसमें भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा कौन सा टेस्ट इसमें अप्लाई होगा। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम सिग्मा देखें तो हम इसको स्टैंडर्ड मान रहे हैं, तो ये सिग्मा गिवन है, तो इसका मतलब हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, जेड टेस्ट लगाएंगे। अब ये भी डिसाइड हो गया जेड टेस्ट लगाएंगे। अब इसका आता है कि फॉर्मूला क्या है, तो जेड टेस्ट का फॉर्मूला है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा रूट एन, जो मैंने बताया था उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। एक्स बार हमें पता है कितना है, 52 ग्राम है, म्यू हमें पता है 50 ग्राम है, सिग्मा हमें पता है 5.1 है, और अंडर रूट एन पता है कितना है, वो 50 है। ओके, तो देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। तो हमने ये भी निकाल लिया। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कह दिया क्योंकि एन जो है 30 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेंटर लिमिट थ्योरम की वजह से वो नॉर्मल होगा। अगर सैंपल साइज स्मॉल होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर तो नॉर्मल था ही। पर अगर सैंपल साइज ग्रेटर देन होगा तभी हम इसको कहेंगे कि नॉर्मल को फॉलो करेगा। ठीक है, फिर वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हमें इसको देखना है, टेबुलेटेड वैल्यू देखनी है। अब पहले देख लें भाई हमारा टेस्ट कैसा है, वन टेल है कि टू टेल्ड है, बताइए। वन टेल है, तो वन टेल है तो अब कौन सा टेल है, वन टेल है तो लेफ्ट है कि राइट, राइट टेल टेस्ट। राइट है। तो नॉर्मल का हमने ग्राफ बनाया और इसको हमने नॉर्मल ग्राफ बना के तो राइट टेल है तो कहीं यहाँ पे लाई करेगा, ये पॉइंट चाहिए, पॉइंट कितना, ये हम टेबल से देखेंगे। तो टेबल से अगर हम देखते हैं तो इसकी ये इन्होंने अल्फा 1% लिया है, तो 1% पे इसकी वैल्यू आती है 2.58, जो मैंने टेबल बताई थी आपको, जो हमने यूज करी है यूनिट नंबर 7 में, वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। आपको मैं अगर वापस ले चलूँ यूनिट नंबर 7 में, एक मिनट रुकिए जरा। यस, दिस वन, तो ये वैल्यू थी। ठीक है, तो ये जेड अल्फा बाई 2 है, यानी जो वो वैल्यू जो उसको डिवाइड करेगी, टोटल एरिया को डिवाइड करेगी क्रिटिकल रीजन में और नॉन क्रिटिकल रीजन यानी नॉन रिजेक्शन रीजन में। तो ये कितनी है हमारी, अल्फा है हमारा 1%, 0.01, तो उसकी वैल्यू है 2.58। तो 2.58 पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि क्रिटिकल रीजन में और नॉन क्रिटिकल रीजन में। तो चलिए वापस चलते हैं फिर। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ग्राफ बनाया, यस ये बनाया 2.58, तो 2.58 होगा, एक गलत हो रखा है, नहीं 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 सॉरी 2.858 नहीं होगा, ये होगा 2.33। वो था टू टेल्ड में, ये वन टेल्ड है तो वन टेल्ड पे इसकी वैल्यू 2.33 होती है। शायद टेबल होगी, मैं कहीं आपको कहाँ पे होगी टेबल, फॉर्मूला बुकलेट में ऑलरेडी है, मुझे याद है, मैं फॉर्मूला बुकलेट में लेके चलता हूँ आपको, एक मिनट रुकिए।
तो मीटिंग टाइम का भी ध्यान देना, मीटिंग टाइम ओवर होने वाला है। देव, आपकी आवाज थोड़ी कम आती है। मीटिंग टाइम का भी ध्यान देना, मीटिंग टाइम ओवर होने वाला है। टाइम जब ओवर हो जाएगा तो आप फिर दोबारा लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है सर। है ना। इसमें यहाँ पे क्योंकि ये 40 मिनट्स का ही दे पाता है, तो आप दोबारा लॉगिन कर लीजिए, मैं दोबारा स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है सर। Yes, it is visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फॉर्मूला एंड स्टैटिस्टिक्स टेबल बुकलेट, ये बुकलेट है आपकी। और अगर इसमें आप चलते हैं तो यहाँ पे ये सब कोर्स हैं, उनके सबके फॉर्मूले हैं। और अगर आगे चलते हैं तो आपको टेबल मिलेगी, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल, जैक टेबल, है ना। और ये कॉमनली यूज वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, ये हम कॉमनली यूज वाली वैल्यू देखेंगे 36 पे। तो पेज नंबर 36 पे देखते हैं। तो 1 मिनट रह गई, चलो दोबारा लॉगिन कर लेंगे। कॉमनली यूज ये वैल्यू है कि 1 टेल था हमारा राइट। सर आप लॉग आउट मत करिएगा, देखिए अपने आप बंद होता तो ठीक है, अदरवाइज नॉर्मली एक्सटेंड कर देता है। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो देखिए ये है 1 राइट टेल, तो 1 राइट टेल पे हमारी वैल्यू कितनी होगी, 2.326 हो, ओके, एंड 2.33, तो ये वैल्यू होगी, ये हम टेबल से रीड कर लेंगे, ओके। तो ये हमें दे दिया, क्रिटिकल वैल्यू दे दी, इसे बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू वो है जो हमारे टोटल एरिया को डिवाइड कर रहा है, रिजेक्शन रीजन में और नॉन रिजेक्शन रीजन में। तो ठीक है, ये भी हो गया। तो हमने देखा ग्राफ बना के हमारी वैल्यू कितनी आई थी, इसकी टेबल इसकी आई थी 2.78, और ये वैल्यू है 2.33। तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है, इधर लाई कर रहा है रिजेक्शन रीजन में, तो हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, ओके। तो ये तरीका है कोई सा भी टेस्ट अप्लाई करने के लिए, एक्सटेंड कर दिया है। कोई भी टेस्ट अगर आपने अप्लाई करना है तो ये प्रोसीजर रहेगा। आपने अगर जेड टेस्ट करना है तो जेड वाली वैल्यू ले लेनी पड़ेगी, क्रिटिकल वैल्यू जेड यानी जेड टेबल से। और अगर आपने टी टेस्ट करना है तो टी से ले लेंगे और कंपैरिजन कर लेंगे कि कहाँ पे